جناب السلام علیکم. ہم نے بات کر لی تھاٹس کے دو کی انٹروڈکٹری ویڈیو اور اب فوکس. یہ فوکس کا جو ایف ہے یہ ہماری زندگی میں فارورڈ موو کرنے میں بڑا انسٹرومنٹل رول پلے کرتا ہے. فوکس، پریسیجن فوکس. ہمیں بچپن میں سب کچھ ہیپ ہیزرڈ ان اے ہیز دیکھنے کو ملا ہے. کسی ایک ڈائریکشن میں چینلائز نہیں کیا گیا. کیریئر کاؤنسلنگ ہے نہیں، ایجوکیشنل کاؤنسلنگ ہے نہیں کہ بچہ 5th گریڈ کے آگے جائے تو پھر اس کو ایک سبجیکٹ اور ایک فیلڈ کی طرف فوکس کیا جائے. ہمیں تو پوری یارڈ سٹک سے 10ویں تک میئر کرنا ہی کرنا ہے. میں ایجوکیشن سسٹم کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایجوکیشن بری نہیں ہے، پر ایجوکیشن پوسٹ کووڈ چینج ہونا بنتی ہے باس. ہمارے اس تعلیمی نظام کو چینج ہوگا تب ہی ہمارا بچہ جو ہے وہ دنیا بھر میں ایکسیپٹیبل ہوگا. زندگی میں جب تک آپ کا کوئی نصب العین نہ ہو تب تک آپ اس پہ فوکس نہیں کر پاتے. فار یو ٹو بی لیزر اور پریسیجن فوکسڈ یو ول ہیو ٹو ریموو آل دا ڈسٹریکشنس. فوکس ڈپینڈنٹ ہے ڈسٹریکشن کے ریموول سے. اور اگر ڈسٹریکشن، یہ دیکھو یہ بڑا ہے، اگر ڈسٹریکشن آ گیا تو فوکس چھوٹا پڑ جائے گا اور پھر آپ ڈسٹریکٹڈ ہی رہیں گے. ہم ڈسٹریکشنس کو کیسے ریموو کرتے ہیں، فوکس پہ بعد میں آئیں گے، پہلے ٹولز کی بات کرتے ہیں. The number one distractor is social media. ایک صاحب آئے میرے پاس، کہتے ہیں باس 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، بڈ پہ پروجیکٹس پہ کرتا ہوں، میرا ایک بلاگ بھی ہے سر، میرا ایک یوٹیوب کا چینل بھی، اور میں نے یوڈیمی پہ بھی ایک کورس اپلوڈ کیا ہوا ہے، لیکن سر کوئی نہیں دیکھتا اس کو. میں نے کہا کہ آپ ایک دن ذرا پلیز آبزرو کر کے لائیں. اور میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں آپ ایک گھنٹا کس کس چیز پہ سرو کرتے ہیں. وہ پورا چارٹ لے کے آئے جی، وہ ورک چارٹ لے کے آئے میرے پاس. اٹ واز ویکینڈ اینڈ آئی لافڈ آؤٹ لاؤڈ. میں نے کہا وکیل صاحب اس 24 گھنٹے میں، یہ بات کو 3 سال غالباً پرانی ہے، پری کووڈ. میں نے کہا وکیل صاحب اس پورے 24 گھنٹے میں آپ کی جو ایکچوئل پروڈکٹیوٹی ہے نا وہ ٹوٹل 1.5 گھنٹے کی ہے. ریسٹ از آل ڈسٹریکشن. تھوڑی دیر ادھر دیکھا، اچھا جی ایک پروجیکٹ پہ بڈ کی، اور باقی کے 59 منٹس جو ہیں وہ لگا دیے انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب کا کنٹینٹ کنزیوم کرنے میں. سو سوشل میڈیا از نمبر 1 ڈسٹریکشن. سیکنڈ ڈسٹریکشن از جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہو، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے آپ آن لائن ورکر ہو، چاہے آپ انٹرپرینیور ہو یا بزنس پرسن ہو یا آپ امپلائی ہو، یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنی ورک سپیس میں جب آپ کام کر رہے ہوں تو فون کو سوئچ آف کرنا ہے اور اننیسیسری براؤزر کی ٹیبز بند کرنی ہے. کچھ بھی کر رہے ہو، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو تب تو کمپیوٹر کا اگر استعمال نہیں ہے تو اس فون کو سائلنٹ پہ رکھ کر کے دراز کے اندر رکھ دیجیے. 1 گھنٹے سے 4 گھنٹے. یہاں پہ اسکرین پہ آپ کے آ رہا ہے 4 پاور آورس. ٹول دے رہا ہوں آپ کو، یہ ٹول انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے میں بڑا مؤثر ثابت ہوگا. 4 پاور آورز میں نے ایکسیڈنٹلی ایکسپلور کیا. اب میں یہاں پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، بٹ لانگ سٹوری شارٹ، پاکستان میں انٹرنیٹ اور فون بند ہو گیا. بھائی جیسے جیسے زندگی نہیں بند ہوگی، گھر والوں کے ساتھ بھی تھوڑا وقت بتایا، بڑے اچھے لوگ تھے یار، پہلی دفعہ احساس ہوا. ہمیں ایپس بنا دی ہے اس فون نے، ایسے کوبے ہو کے 24 گھنٹے ہم اپنا فون دیکھتے رہتے ہیں، جیسے زندگی اسی پہ گزر رہی ہے. میرا بڑا بھائی ہمیشہ ایک بات بولتا ہے، یہ فون آپ کے لیے بنا ہے، آپ فون کے لیے نہیں بنے. یوز اٹ وین یو نیڈ اٹ اینڈ اٹ از دا نمبر 1 cause آف اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن اینڈ دیئر فور illness. جائیں اور گوگل کر لیں کہ جتنے بھی اسمارٹ فونز ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس نے ہمارے رشتوں کو خراب کر دیا، اس نے ہماری ہیلتھ کو ڈیٹیریٹ کر دیا. میں جب گاڑی چلاتا ہوں نا تو میں گاڑی چلاتے ہوئے اسمارٹ فون کو اپ سائڈ ڈاؤن کر لیتا ہوں. The habit I developed when last time I went in Dubai and I saw huge change in my mind. میں جب رات کو سوتا ہوں تو اس کو ایئرپلین موڈ پہ رکھ لیتا ہوں. اس کے وائی فائی کی ریڈیشن میں اپنے دماغ میں کیوں گھسیڑوں بھائی، اور کم چیزیں گھسیڑنے کے لیے. سب کانشیس از filled with all sort of necessary information. So for you to avoid distraction یہاں پہ اسمارٹ فون کا منیمم یوز کرنا ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور جاگنے کے آدھا گھنٹہ بعد اس فون کی اسکرین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز آپ اپنے آپ کو ایکسٹرا ریس دے رہے ہو اپنی آئیز کو، اور ایسی اننیسیسری انفارمیشن
चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, ऐसी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने सुबह सुबह अपने जहन में फीड कर रहे हो विच विल ड्राइव यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, रादर देन यू ड्राइविंग द डे विल ड्राइव यू। गड़बड़ है ना ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो हैं वो अपने स्मार्टफोन का यूज ऑप्टिमम रखेंगे, जरूरत नजरिया के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है भाई साहब। अब अगर आप स्मार्टफोन का यूजेज खत्म कर दें, अगर आप डिस्ट्रैक्शन चाहे वो सोशल मीडिया की खत्म कर दें, तो इसका मतलब आपका फोकस कदरे बेहतर हो जाएगा, लेकिन बात फिर भी नहीं बनेगी। क्यों? जब तक कागज पे कुछ नहीं लिखोगे। स्टार्ट राइटिंग योर डे टू डेली एक्टिविटीज इन द बिगिनिंग ऑफ योर डे। व्हाट डू यू वांट टू गेट डन? मुश्किल है ना। स्मार्टफोन ने पेन और पेपर की आदत ही ख़त्म कर दी है। क्या करें बॉस? पर अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर ज़िंदगी में फोकस करना है, अगर ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, तो लिखना शुरू कर दें। और लिखना शुरू करने से ये होता है कि आप अपने माइंड को ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं जो कि मेमोरेबल है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, गो एंड गो गूगल इट योरसेल्फ। लिखने से आपकी मेमोरी तेज़ होती है। मैंने जब भी कोहोर्ट कराया, कोहोर्ट 2, 3, 4, 5 LCD, मैंने स्टूडेंट्स के पर्चे भरवाए। सर हम तो कंप्यूटर सीखने आए थे, सीख लिया कंप्यूटर। ग्रेजुएशन के बाद मुझसे पूछते हैं सीख लिया सर? सब कुछ सीख लिया, सोशल मीडिया सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, फ्रीलांसिंग सीख ली, माइंडसेट सीख लिया। सर लिखवाया क्यों? हाथ दुखे। हाथ दुखे इसलिए कि आपको आदत ही नहीं रही थी लिखने की। तो मुझे क्या चाहिए? इस पूरी वीडियोस जब ख़त्म हो जाएंगी, इसके एंड में एक ग्रुप है जिसमें मैं आपको इंक्लूड करूंगा, और वहां पे मुझे आपके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन, जो मैंने आपको एक करवाया। बाय द वे, दिस विल बी, द होल लिस्ट विल बी गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एक लिंक है जिसको आप फॉलो करें और उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इसको अपने हाथ से लिखना है कि आपने क्या सीखा। किताब में तो वैसे ही आ जाएगा और वो आपके पास आ जाएगी। सो फोकस डिस्ट्रैक्शन रिमूव करने से आता है। और फिर जब फोकस है ना, तो इसका मतलब है कि आपने कामयाबी की तरफ कुंडा डाल दिया। डिस्ट्रैक्शन रिमूव हो गई, कुंडा डाल दिया। कुंडा डालने के लिए एक बात याद रखना, डिस्ट्रैक्शन खाली सोशल मीडिया, स्मार्टफोन की नहीं होती, पासो लोगों की भी होती है। तो जिन लोगों से तंग हो रहे हो, अगर वो इमीडिएट फैमिली रिलेशन नहीं है, फैमिली इज़ अ प्रायोरिटी, ऐसे दोस्त जो आपकी सोच को ख़राब कर रहे हैं, ऐसी कंपनी जो आपको हर वक्त जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खलास, आउट ऑफ योर लिस्ट। जल्दी से जल्दी। जितने भी ये जो रोंदू दोस्त है ना, सबसे पहले पहली फुर्सत में 2024 में इनसे तो जान छुड़ाओ। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई इंस्ट्रूमेंटल रोल नहीं प्ले करना, बल्कि आपको हमेशा नीचे ही दिखाना है, हमेशा रोते ही रहना है। तो जिन्होंने सारी पहले भी रोए हैं, वो अगले साल भी रोएंगे और सारी उम्र रोते रहेंगे। गेट रिड ऑफ देम यार। और इमीडिएट फैमिली का भी फॉर्मूला जो मैंने अडॉप्ट किया, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। डोंट जस्ट ड्रैग द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, इट हेल्प्स यू इन अ लॉन्ग रन। तो जब आप फोकस करना चाहते हैं, तो कभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, और आप इसको मुशाहिदे में देखिएगा कि कभी ना कभी तो आपका भी ये मुशाहिदा स्टैंड ट्रू करेगा इंशाल्लाह। ज़रा सुबह सड़क पे खड़े हो जाए और आपने लाल गाड़ी ढूंढनी है। फजूल लग रहा है ना? कामयाब होना है और फोकस करना सीखना नहीं है। बस 5 मिनट बाद आपको सड़क पे सिर्फ लाल गाड़ी नजर आएगी और बाकी सारे रंग और मेक मैन्युफैक्चरर्स को आप इग्नोर करोगे। वजह? क्योंकि आपकी तवज्जो मरकूज है उस चीज पे जिसका आपका ज़हन मुतलाशी है। तलब जब होती है ना किसी चीज की, तो फिर उस पर तवज्जो मरकूज होती है, और जब तक आपकी वो तलब पूरी नहीं होती, बाय यू गिविंग इन द फुल फोकस एंड अटेंशन, तब तक आप मूव ऑन नहीं करते, कामयाब नहीं होते। गाड़ी तो सफेद भी गुजरी, काली भी गुजरी, आपने लाल गाड़ी क्यों ढूंढी है? लाल गाड़ी इसलिए ढूंढी है कि आपकी नजरें लाल गाड़ी पे, लाल रंग पे जम्मी बैठी थी। कामयाबी भी ऐसी है। राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर
What do you want to achieve by the end of 2024? राइट इट डाउन. आगे हम गोल्स की बात करेंगे और बड़ी तफसीलन गोल सेटिंग की बात करेंगे, और वो नहीं जो किताब बताती है, वो जो मैंने किया. मुझे किताब से कोई सरोकार नहीं है. मैंने बहुत सारे लोगों के डिफरेंट मुशाहिदे, उनके एक्सपीरियंसेस बुक से पढ़े, वीडियो से देखे, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं यूनिक हूँ. मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हूँ जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर मकसद के नहीं बनाया. आई नीड टू नो माई पर्पज़ ऑफ एक्सिस्टेंस. आई नीड टू नो वाई आई एम हेयर. और मुझे किक जो मिली है ना, वो मुझे आके मिली कोई 44th ईयर में बाय वर्किंग विद यू गाइस. मज़ा ही आ गया, ज़िंदगी बदल गई. कि लोगों के लिए जब आप काम करते हैं तो आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रह लेते हैं. पैसे तो पहले भी कमा रहे थे, ऊंच नीच अपनी जगह, लेकिन वो जो ज़िंदगी का 360 डिग्री पैराडाइम शिफ्ट हुआ, जब मेरा फोकस शिफ्ट हो गया कि मुझे क्या करना है हर रोज़, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि देयर आर अप्स एंड डाउन्स, बिजनेस है, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली रिलेशंस एंड ऑल दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. पिछले दिनों मैंने कम्युनिटी में लिखा कि मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी. इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट. लेकिन प्रायोरिटी ये है कि अगला साल स्टार्ट होने वाला है, मेरे हाथों से अगर किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली आती है, आई हैव अचीव्ड माई पर्पस. और वो फोकस क्या कहता है कि मुझे तवज्जो से एक ही चीज़ की तरफ काम करना है. और वो तवज्जो क्या थी कि मैं पिछले 2 साल से सोच रहा था कि जो सीखा है वो सब सिखा दूँ. और वो क्या था कि हमें जो भाई जो डेफिसमेंट का विक्टिम हम सारे बने हुए ना, वो तोड़ना है भाई. वो तोड़ेंगे और मिल के तोड़ेंगे. बाकी तो रेस्ट इज सेकेंडरी. टोनी रॉबिन्स कहता है 80% ऑफ योर सक्सेस इज एटीट्यूड. अगर 80% आपका जो कामयाबी है वो आपका एटीट्यूड है. ये एटीट्यूड क्या है? फोकस, माइंड सेटिंग, गोल सेटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बाद मैनिफेस्टेशन, डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. तो बाकी तो स्किल तो आप कभी भी सीख सकते हैं. स्किल के लिए तो मैं हमेशा आगे नीचे भी बात करूंगा. लाइफ चेंजिंग डे में भी बात की कि 90 डेज अपने आप को दे दें. 45 डेज फॉर लर्निंग, 45 डेज फॉर प्रैक्टिस. लर्निंग के लिए udemy.com पे जाओ. अगर फ्रीलांसर हो, ई कॉमर्स, यूट्यूबर, ब्लॉगर, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू वांट टू लर्न अ स्किल और टू, सीधा बात. Udemy से अच्छा तो कोई टीचर ही नहीं है. थोड़े पैसे खर्च करो ना, $12. कम से कम उसको ये तो ताने नहीं ना दोगे कि वो चूरन सेलर है, मंजन सेलर है, और उसकी मीम्स के ग्रुप में जाके. मासूम तो वो लोग हैं जिनको इनका सीन नहीं पता. सर सब चीज़ों पे नज़र होती है, लेकिन आप पे हंसी आती है क्योंकि आपने ग्रो ही नहीं किया. और आप ग्रो कैसे करेंगे जब तक आपका थॉट प्रोसेस ही बड़ा नहीं है. सो Udemy पे जाएंगे और Udemy पे जाके कोर्स खरीदेंगे, और फॉर नेक्स्ट 45 डेज फॉर प्रैक्टिसिंग, 90 डेज फॉर लर्निंग. तो स्किल तो आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से. बाकी तो प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट. How you execute what you have learned, and that can only be done if there is a full 110% focus. That is what matters the most. सीख तो सारी रहे हैं. यूनिवर्सिटी भी सिखा रही है, घर भी सिखा रहा है, माशरा भी सिखा रहा है, मुल्क भी सिखा रहा है, दुनिया भी सिखा रही है, इंटरनेट भी सिखा रहा है, दोस्त भी सिखा रहे हैं, वक्त, हालात, वाकियात सब सिखा रहे हैं. एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो फायदा. सो आपका फोकस डिटरमिन करेगा कि आप ज़िंदगी में कितना आगे जाएंगे. आपके फोकस से रिलेटेड 5 बातें हैं जी. एक तो आपने जिम्मेदारी उठानी है. कैसे? हम अगली वीडियो में बात करेंगे. विक्टिम प्लेइंग बस इनफ. आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद इनफ. रॉकी बल्बोआ एक सीन है, विक्टिम प्लेइंग की वीडियो में बताऊंगा. फिर प्रोक्रास्टिनेशन. मैं जी सर बहुत सुस्त, सर काम नहीं होता. बेटा आपकी चल रही है ना, इसलिए आप नहीं चल रहे. मैं यहां पे मोटिवेशन देने आया भी नहीं. आपकी चल रही है ना अभी तक. मम्मा पापा आपको पाल रहे हैं, आपको माशाल्लाह हिलने की जरूरत नहीं है. बड़ा भाई थोड़ा दुबई होता है. उसके बाद जनाब आपकी ट्यूशन फीस दी जा रही है, आपकी एजुकेशन फीस खुद जेब से नहीं जा रही, कमाना आपने नहीं है, आपकी चल रही है, इसलिए आप नहीं चलते. फिर जनाब अगली बात, आपको अपनी ताकत का पता होना चाहिए. यू शुड नो योर स्ट्रेंथ. How do you know your strength? You only know your strength once you know your weakness. How do you know your weakness? The world is telling you how weak you are. Stop closing your eyes. आज पहचान लो अपने आप को. और आखिरी चीज़, फैसला लेना. तो ये तमाम फोकस से रिलेटेड अगली वीडियो में, स्टार्टिंग विद टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. आई एम रिस्पॉन्सिबल. तैयार हो? पेन पेपर पकड़ो, 100 दफ़ा लिखना अगली वीडियो में. मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.